ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग पे, ठीक है। So basically, there are some limitations attached with conventional machining, and there is a need for advanced machining processes. What limitations create that need is one of the limitation is the hardness of the workpiece, that as we go on increasing different applications, then there may be different workpieces which have higher hardness than the uh, a single point cutting tool or multiple point cutting tool can machine. So this will result in decreased economic cutting speed, as you have to reduce speed when there is high hardness, so the productivity will be lower. So in that cases, there is a need to develop such machining process which do not slow down the uh, process or cutting speed just because the material hardness is high. Secondly, that newly materials are being developed, and those materials have different or high hardnesses and strengths, etc. And those materials sometime the ongoing conventional machining process is not recommended for such materials, right? They may result in poor surface finish, they may result in very low production rates. So such type of rapid improvement in the properties of materials result in the requirement of such machining that can correct. So here you can see that when a high or superior quality of tool materials required, and that can't be possible in conventional machining. So in that case, you can must have some alternative to that conventional machining. On the other hand, tool material hardness must be greater than workpiece. That the basic requirement of conventional machining method. And when you don't have any such material which have hardness, then or you can say it how you will make the tool material, then a much harder material may be required for that. So this may go on increasing. So there must be an alternative method to machine such tool materials which have high hardness and wear resistance as compared to the work material, ठीक है। ये जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से लिमिटेशंस थी, तो उसके लिए जो है वो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की नीड डेवलप हुई। इफ़ वर्क पीस मटेरियल हार्डनेस इज ग्रेटर देन द टूल मटेरियल हार्डनेस, हाउ आर यू गोइंग टू मशीन सच अ वर्क पीस मटेरियल, ठीक है। तो बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग या और थर्मल कटिंग प्रोसेसेस को हम इन उसमें डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के ये जो है वो कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है। एनर्जी का पहले इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें जो है वो टिपिकली जो कन्वेंशनल मशीनिंग में कटिंग का प्रोसेस किया जाता है वैसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाती। एनर्जी को किसी एक फॉर्म में चेंज करके प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोसेसेस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस हैं, थर्मल एनर्जी प्रोसेस हैं और दूसरी तरह की एप्लीकेशन कंसिडरेशन भी इसमें हम देखेंगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस दैट रिमूव एक्सेस मटेरियल बाय वेरियस टेक्निक्स इन्वॉल्विंग मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी और कम्बिनेशन ऑफ these. They do not use a sharp cutting tool in the conventional sense, ठीक है। ये फ़र्क सिर्फ यही है कि शार्प कटिंग टूल कन्वेंशनल सेंस में इसके नहीं यूज़ किया जाता, इसके बजाय जो है वो
एनर्जी की कोई और फॉर्म जो है वो यूज़ की जाएगी। वो इट कैन बी मैकेनिकल एनर्जी, इट कैन बी थर्मल एनर्जी, इट कैन बी electrical energy or chemical energy, or it can be a combination of electrothermal or electrochemical process. These all are combined in non-traditional processes. ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस की? need to machine newly developed metals and non-metals with special properties that make them difficult or impossible to machine by conventional method. ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारी, ठीक है, कि बेसिकली कब आपको ज़रूरत पड़ती है कि नाउ यू कांट डू इट इन अ कन्वेंशनल वे, देयर मस्ट बी एन अल्टरनेट वे टू डू द सेम टास्क। वो कब है कि एक तो ये है कि नई मेटल्स डेवलप हो रही हैं, नई नॉन मेटल्स भी डेवलप हो रही हैं जिनके लिए कन्वेंशनल जो है वो मशीनिंग सूटेबल नहीं है। फिर है नीड फॉर unusual or complex part geometries. Although conventional machining have so many advantages, but when it comes to complex part geometries, then there will be some time a very low production rate associated. You have to make one hole in drilling machine, then you have to move that part into some other machine to do, and in such cases the requirement of work handling and tool handling is quite a job. So in that case, you have, when there is a complex part geometry, it will be more feasible to make it in a way that it will require low work handling and low tool handling, and the process could be accomplished in only one machine. So that can be obtained in non-traditional or conventional process in a more easier way than a conventional machining process. Although conventional machines maybe may have so much automation, or you can say you are working on machining center, but if it can, if it's possible for some non-traditional process to be utilized, then it is the option you opt for, right? Because it will surely reduce the time or increase the production rate. Need to avoid surface damage that often accompanies conventional machining. आपको बहुत सारा पढ़ाया गया कि इसके जो है वो सरफेस जो है वो रफनेस को कैसे, और आपको बहुत हाई स्पीड्स जो है वो चाहिए, अदरवाइज जो है वो सरफेस रफनेस डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप वो हाई स्पीड्स नहीं अचीव कर पाते तो रिजल्ट में सरफेस डैमेज क्रिएट होता है, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर फोकस किया जाए तो बेसिकली एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये दो इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस mass to strength ratio. Basically we are trying to reduce mass, and we are trying to increase strength of a material. So new materials are being developed in those industries, new researches are being carried out, and it results in increasing importance of non-traditional process instead of conventional machining process, ठीक है। ये जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी इसकी, बेसिकली हार्डनेस के मतलब कि अगर वर्क पीस की हार्डनेस ज़्यादा हो जाए टूल मटेरियल से तो व्हाट शुड वी डू। नए मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर जो है वो कन्वेंशनल नहीं यूज़ हो सकती, या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है जिसको कन्वेंशनल से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप जो है वो ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। अब क्लासिफिकेशन जो है वो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी दे यूज़ जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। इसमें मैकेनिकल जो है वो टिपिकल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एक्शन जो है इरूजन का, यानी स्मॉल पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी स्ट्रीम फ्लूइड और फ्लूइड दोनों के बगैर अगर रन किया जाए तो इसको जो है वो मैकेनिकल नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस कहते हैं। अब इसको आप रिलेट ग्राइंडिंग के साथ भी किसी हद तक कर सकते हैं, जैसा कि आपने लैपिंग में पढ़ा है। अभी आप इसमें देखेंगे कि कैसे प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू लैपिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ये देखें कि डिस्ट्रक्शन में हम इसको अगर देखें तो बेसिकली हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन on vast land, because in open areas you already know that there
turbines are usually installed in such an areas where high speeds of air can be obtained. So in that cases, high speed of air can usually result in sandstorms. And when there is a sandstorm, sand behave as an abrasive particle, and it will deteriorate the surface of turbine blades. दिस इज द फिनोमेना कॉल्ड इल्यूजन, ठीक है। यानी एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं, जब बहुत हाई स्पीड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, तो वो इल्यूजन का जो है वो फिनोमेना क्रिएट करते हैं। ये डिस्ट्रक्शन है। यही चीज़ जो है वो साइंटिस्ट ने सोची कि अच्छा, ये जो है वो पार्ट को रिमूव करें तो सेम प्रोसेस कैन बी यूज टू produce machining, or the removal of machining where workpiece where you require a new shape, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है टू रिमूव मटेरियल। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो केमिस्ट्री में, आई थिंक एफएससी में ये पढ़ी हुई है कि वी यूजली डू दैट, वी चार्ज वन प्लेट with positive ions and second with negative ion. So when electric current passed through a surface, then charge is going to start build up on the anode, and it will result in a complete new electroplating surface, ठीक है। यही बहुत से मेथड्स में मटेरियल को प्रोड्यूस करने का भी तरीका है, ठीक है। कि मैम ये जो लेजर कटिंग होती है फिर हम उसको इलेक्ट्रिकल कहेंगे? कौन सी? वो लेजर कटिंग जो होती है उसको फिर इलेक्ट्रिकल हम कहेंगे? लेज़र को आई थिंक अभी आप इसको इसमें आगे भी पढ़ेंगे, वो थर्मल में जाके डिफाइन हो रही है, ओके। ठीक है। क्योंकि हम लेज़र को बेसिकली जो है वो एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ हीट, देन यू विल डिफाइन इट इन थर्मल, बट इन सम केसेस आप उसको जो है वो नहीं, उसको इलेक्ट्रिकल में नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। उसको आप थर्मल में ही काउंट करेंगे लेज़र कटिंग को, ठीक है। क्योंकि उसमें फ्यूज़ होता है मेटल, जो है वो मेल्ट होता है और इस तरह कटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद थर्मल एनर्जी जो है वो बेसिकली यूजली अप्लाइड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्क पर सर्फेसिस, कॉजिंग दैट पोर्शन टू बी फ्यूज्ड और वेपराइज्ड। वो समझें कि जिस तरह हम वेल्डिंग में नई सरफेस क्रिएट करते हैं और डेवलप करते हैं वेल्ड करके चीज़ को, तो उसी तरह हम इसका ऑपोजिट जो है वो थर्मल में करें। यानी ये तीनों प्रोसेस लिए यूजुअल लाइफ में जिसमें वो ऑपोजिट काम कर रहे थे, और उनकी ऑल्टरनेट अप्रोच यूज़ करके उनको मशीनिंग के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। इरोजन बेसिकली एक नेगेटिव फिनोमेना लिया जाता है कि जी वर्क पीस के ऊपर से एब्रेसिव पार्टिकल्स गुजरे, या इवन वाटर में, अगर इसी तरह आपने देखा है कि वाटर स्ट्रीम में जो स्टोन्स होते हैं, दे लूज देयर शेप, they go on decreasing in their volume. Why that happens? Because of erosion. Because a high speed stream when comes, it contains sand particles in it that behaves like an abrasive, and in result the stones within the stream change their shape, and finally they even convert themselves into sand particles, ठीक है। तो इसी को उन्होंने मशीनिंग के लिए यूज़ कर लिया कि अच्छा ठीक है, अगर ये काम हो ही रहा है तो फिर मशीनिंग भी इसी तरह करें। यानी हमने किसी चीज़ को वाकई शेप चेंज करनी है तो एब्रेसिव यूज़ करो। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही थी, उसमें हमने एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव दे दिया। अगर हम चार्ज को उलट देंगे तो कैथोड में से मटेरियल रिमूव हो के और जो है वो एनोड की शेप जो है वो बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उस तरह जो है वो मटेरियल रिमूव किया जा रहा है। फिर थर्मल में हमने जो है वो आप फ्यूज़ करने, यानी चीज़ों को जोड़ने के बजाय यू आर बेसिकली कटिंग ऑफ टू मेटल पार्ट्स फ्रॉम थर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल बेसिकली एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हुए इन तीन किस्म की एनर्जी को यूज़ करता है। इसी को मज़ीद अगर डिफ़ाइन किया जाए कि मैकेनिकल की आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग है। अभी इसको देखते हैं डिटेल में। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है, वाटर जेट मशीनिंग है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग है, ठीक है। और इसी में फिनिशिंग में एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग है, मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग है, और मैग्नो
ट्रियोलॉजिकल फिनिशिंग है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि मशीनिंग अलग वे में की जाती है और फिनिशिंग अलग वे में। फिर अगर थर्मो इलेक्ट्रिक की बात किया जाए तो प्लाज्मा आर्क मशीन देखें, थर्मो में ही लेज़र बीम मशीनिंग है। इसको थर्मो इलेक्ट्रिकल इसलिए कहा जा रहा है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक जो है वो पावर जो है वो कन्वर्ट हो रही है उस लेज़र बीम में, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हिट किए जाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है जिसके अंदर वेल्ड कर दिया जाता है पार्ट को, इसी तरह उसको कट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कटिंग यानी मशीनिंग का काम लिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है और आयन बीम मशीनिंग है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड केमिकल मशीनिंग की बात की जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, केमिकल मशीनिंग है और बायोकेमिकल मशीनिंग है, ठीक है। ये तो हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस मशीनिंग प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एनर्जी यूज्ड। अगर हम देखें कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोसेसेस फर्दर किस किस चीज़ में डिफाइन हैं, तो उनमें सबसे पहले आपके पास आता है, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक है। फिर हम वाटर जेट कटिंग को देखेंगे, एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग को और एब्रेसिव जेट मशीनिंग को। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो है वो ये है कि एब्रेसिव इज़ कंटेन्ड इन अ स्लरी are driven at high velocity against work by a tool vibrating at low amplitudes but at very high frequency। मैंने आपको बताया था ना कि जिस तरह हम लैपिंग में एक टूल को हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर मूव करवाते हैं, उसमें बस फ़र्क इसमें और लैपिंग में ये है कि उसमें हम मोस्टली हैंड हेल्ड ऑपरेशन कर रहे होते हैं और जो है वो उसको 8 की शक्ल बना रहे होते हैं। इसके अंदर जो है वो अल्ट्रासोनिक स्पीड के ऊपर मैकेनिक जो पावर के थ्रू जो है वो हम इसको मूव करवाते हैं। फ्रिक्वेंसी इसकी इस तरह और मैग्नीट्यूड स्मॉल रखा जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका स्मॉल रखा जाता है जबकि फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल्स टू 1/टॉ यानी टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है कि एक टाइम पीरियड में कितने साइकिल्स इसने किए हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, वो जो है वो बहुत हाई रखी जाती है। ये बहुत, और इसमें जो है वो एब्रेसिव पार्ट इसको अभी एग्जेजरेट करके दिखाया गया है बहुत ज़्यादा। असल में ये बहुत माइन्यूट एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे और इसको जो है वो एक फ्लूइड में रखा जाएगा जिसे स्लरी का नाम दिया गया है, और जो भी शेप आपके इस टूल की होगी वही शेप जो है वो वर्क पीस में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू दिस एब्रेसिव एक्शन ऑफ द टूल एट अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो जैसा कि आपको शेप ही से नज़र आ रहा है कि ये एक तरह का फॉर्मिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर टूल की शेप का रेसिप्रोकल जो है वो वर्क पीस में क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो abrasive contained in a slurry are driven at high velocity against work by a tool vibrating at low amplitude and high frequency. टूल ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू वर्क सरफेस। देखें जैसे कि आपने फिगर में भी देखा है कि टूल जो है वो परपेंडिकुलर टू वर्क सरफेस मूव कर रहा है, और जो है वो एब्रेसिव एकम्प्लिश मटेरियल रिमूवल, एब्रेसिव के थ्रू मटेरियल रिमूवल किया जा रहा है और टूल जो है वो स्लोली वर्क पीस में इनपुट किया जा रहा है और शेप ऑफ टूल इज फॉर्म्ड इनटू द पार्ट। ये जो है वो टूल की शेप वर्क पीस में क्रिएट की जा रही है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की एप्लीकेशंस कहाँ हैं? वहाँ जहाँ पर हार्ड ब्रिटल वर्क मटेरियल हो जैसे सिरामिक, ग्लास और कार्बाइड्स। अब यू ऑलरेडी नो कि जब हमने ग्राइंडिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि वेन एवर you need to machine ceramics, glass and carbides, then you require a very hard tool material and very hard even abrasive. So for such type of abrasives, the most commonly used abrasive is diamond, right? So you can say that here very small particle of diamond can be used, or other abrasives like silicon
कार्बन न्यूट्राइड बोरोन नाइट्राइड कैन ऑल्सो बी यूज, तो उसको जो है वो स्लरी में रखा जाएगा और रिजल्ट में ये चीज़ प्रोड्यूस होगी। ये इसी तरह मेटल्स के ऊपर भी वर्क कर सकती है, जैसे स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम हो। और इसको बेसिकली हम फॉर्मिंग का ऑपरेशन नहीं कह रहे, हम इसे कॉइनिंग का ऑपरेशन कह रहे हैं, बिकॉज कॉइनिंग ऑपरेशन आर in those are called those operation in which the pattern on the tool is imparted to a flat work surface. That is why this ultrasonic machining process is called coining operation, because in coining operation, when you have to make coins, forging die will exactly create the opposite or replica or mirror image of what योर टूल लुक लाइक। ठीक है, जो उसमें राइज्ड पार्ट होते हैं वो लो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लो पार्ट जो है वो राइज पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, इसकी ओवरऑल ये जो है वो टर्मिनोलॉजी है, या फिर आप कहें कि फिगर इसकी इस तरीके से है, इसको समझ लें, इसकी एप्लीकेशन देख लें। फिर आपके पास आ गई अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बाद वाटर जेट में कटिंग। ठीक है, ये भी क्योंकि मैकेनिकल की टाइप है, और जैसे कि नज़र भी आ रहा है आपको कि हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी वाटर की जो स्ट्रीम है वो डायरेक्ट की जाती है वर्क सरफेस पे फॉर कटिंग। ठीक है, यहाँ पर सोर्स ऑफ हाई प्रेशर वाटर लिया जाएगा, उसको एक नोज़ल से गुजारा जाएगा, इस नोज़ल के थ्रू वो हाई प्रेशर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाई वेलोसिटी में। यही रिलेशन होता है, आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा कि अगर कहीं कोई हाई प्रेशर हो, आप उसे नोज़ल से गुजारें, तो इट विल reduce its pressure, and that reduced pressure will be converted to high velocity. So these high velocity water मैम particles, जी जी, मैम इसमें ओनली वाटर ही होता है या फिर वाटर के अंदर ग्रेन्स भी होते हैं? मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और बेसिकली ये है कि जब हम खाली वाटर को यूज़ करेंगे तो उसको वाटर जेट कटिंग कहेंगे, और जब हम विद ग्रेन्स यूज़ करेंगे ना तो वो एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग कहलाएगी। ठीक है, और नाउ ओके यू मैम। आर थिंकिंग लाइक एन इंजीनियर कि अब ग्रेन्स अगर डालें तो इसकी एप्लीकेशन अलग हो जाएगी। जब ग्रेन्स नहीं होते तो इस ये जो है वो सिर्फ लो हार्डनेस मटेरियल के ऊपर यूज़ हो सकती है, लाइक फैब्रिक, लेदर और इस तरह के। और जब हम ये एब्रेसिव पार्टिकल्स डाल देते हैं तो फिर ये मेटल के ऊपर भी यूटिलाइज हो सकती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये वाटर जेट है जो कि अपनी हाई वेलोसिटी की वजह से वर्कपीस को काट रहा है। एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस रखा गया है कि इस डिस्टेंस के ऊपर ये सबसे अच्छी कटिंग देगा। फिर वाटर ड्रेन हो रहा है और ये वाटर जेट आ रहा है। ठीक है, यूजली ऑटोमेटेड होता है, ये सीएनसी कंट्रोल्ड होता है, और या इंडस्ट्रियल रोबोट्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। नोज़ल क्योंकि इसके आगे लगी हुई है, और नोज़ल जो है वो अलोंग द डिज़ायर्ड ट्रेजेक्ट्री आराम से मूव कर सकती है, तो इसलिए इसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बना दिया जाता है। और ये फ्लैट सरफेसेस के ऊपर सच एज प्लास्टिक्स या टेक्सटाइल्स या कंपोजिट्स या फ्लोर टाइल्स जो सिरामिक्स की होती हैं, या कारपेट या लेदर या कार्डबोर्ड के लिए इस वाटर जेट कटिंग को यूज़ किया जाता है। और ये ब्रिटल मटेरियल्स फॉर एग्जांपल ग्लास वगैरह के लिए नहीं यूज़ हो सकती। मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि इसके अंदर इट्सल्फ वाटर हाई प्रेशर में तो आ रहा है, और वो हाई वेलोसिटी से जब इम्पार्ट होता है तो कटिंग करता है, बट उसकी इतनी ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती कि वो किसी हार्ड मटेरियल को कट कर सके। दैट इज़ वाई यहाँ पर अगर एब्रेसिव नहीं डला होगा तो किसी ब्रिटल या हार्ड मटेरियल को वो कटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाटर जेट की एप्लीकेशन है जो कि प्लास्टिक टेक्सटाइल्स और लो हार्डनेस मटेरियल तक ही फोकस है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इससे किसी किस्म की क्रशिंग या बर्निंग ऑफ वर्क सरफेस नहीं होती। जब हीट ही अप्लाई नहीं की, किसी किस्म का कनेक्शन जो है वो टूल और वर्क पीस का भी नहीं हुआ, और आप देख रहे हैं कि वाटर स्ट्रीम
इतनी बारीक रखी गई है, तो जो इर्द गिर्द का एरिया है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, बिल्कुल उसके ऊपर किसी, क्योंकि अब आप हीट अप्लाई करेंगे तो इसकी माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो रिजल्ट में इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। हम मशीनिंग करते हैं तो क्या होता है कि मशीनिंग में हाई टेम्परेचर्स होते हैं, हाई टेम्परेचर्स होने की वजह से रिज़ल्ट में वो अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है और मोस्टली सॉफ्ट हो जाता है वर्क पीस भी, और रिज़ल्ट में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं देता। तो वाटर जेट कटिंग का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जो है वो क्रशिंग और बर्निंग ऑफ वर्क सरफेस नहीं होती, ठीक है। फिर इसमें जो मटेरियल रिमूवल है वो लॉस भी सबसे कम होता है, चिप्स नहीं बन रही होती हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ चिप्स होंगे वहाँ मटेरियल रिमूवल लॉस ज़्यादा होगा, इसके अंदर चिप्स जो हैं वो नहीं बन रही, डायरेक्ट कटिंग हो रही है, इसकी कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं है, और क्योंकि नोज़ल लगी हुई है तो ये ईजिली ऑटोमेट हो जाती हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। फिर ऑन दी अदर हैंड, जैसा कि आपने पूछा कि इफ़ यू ऐड some type of abrasive material into a water jet, then what it will be called, it will be called abrasive water jet cutting. And when water jet cutting is used on metals, abrasive particles must be added to jet stream usually, और additional process जो है फिर इसमें देखेंगे कि कौन सा एब्रेसिव टाइप यूज़ करें, क्या ग्रेड साइज़ लेना है, क्या फ्लो रेट लेना है, ठीक है। तो एब्रेसिव इसमें मोस्टली एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और गार्नेट या सिलिकेट मिनरल, जो बेसिकली सैंड ही का एक्सट्रैक्ट है, उससे जो है वो एब्रेसिव टाइप यूज़ किया जाता है। और ग्रिड्स यानी मैश का जो साइज़ है वो वाटर स्ट्रीम में ऑलमोस्ट 0.25 किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से ऐड किया जा रहा होता है आफ्टर इट एग्जिट्स नोजल। तो अगर आप इसको देखें तो एब्रेसिव जो, ओहो उसकी पिक्चर किधर गई, आई डोंट नो किधर गई इसकी पिक्चर, ठहरे जरा, कॉपी पेस्ट में मैंने इसको कहीं गुम कर दिया। बेसिकली इसके अंदर जो ओनली डिफरेंस है, अच्छा इसकी पिक्चर वाकई नहीं है, अच्छा जो मैम जो उसका ग्रेन्स यूज होते हैं उनकी टाइप होती है या फिर पर्टिकुलर ग्रेन्स ही यूज होते हैं? जो एब्रेसिव ग्रेन्स हैं वो जिस तरह आपने ग्राइंडिंग में पढ़े हैं ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज़ हो रहा है जब कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील के ऊपर यूज़ करना है, यस सिलिकॉन मैम। डाइऑक्साइड आप यूज़ करेंगे जब आपने हाई स्पीड स्टील्स वगैरह, हाई स्पीड स्टील्स तो खैर वाटर जेट से कट हो ही नहीं सकते, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आप लो स्ट्रेंथ स्टील्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल, वर्क पीस मटेरियल, एब्रेसिव्स की जो टाइप हैं वो यूज़ होंगी, ठीक है। और नोज़ल में से जब निकल रहा होता है तो उस वक्त जो है वो उसमें वाटर स्ट्रीम में ये एब्रेसिव ऐड कर दिया जाता है जब हाई प्रेशर में वो आ रहा होता है, ठीक है। फिर है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब हमने दो तो ये टाइप पढ़ी कि अगर हम वाटर में करें और वाटर को ऐड कर दें एब्रेसिव के साथ। नाउ वन अनदर टाइप इज़ दैट इन विच high velocity stream of gas containing small abrasive particles instead of water or any other liquid. A high stream gas containing small abrasive particles is used for cutting. Such type of operation is called abrasive jet machining, ठीक है। ये मोस्टली हैंड हेड टूल्ड होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैस और एब्रेसिव का मिक्सचर यहाँ बन रहा है, वो नोज़ल से हैंड हेल्ड नोज़ल असम्बली है, ये वॉल्व है, और गैस एब्रेसिव स्ट्रीम यहाँ पर हिट कर रही है, और यहाँ पर एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा है जिसमें से ये एयर में पास हो रही है, और ये वर्क पीस है, तो इसको एब्रेसिव जेट मशीनिंग कहते हैं, ठीक है। यूजली परफॉर्म मैनुअली बाय ऑपरेटर हु डायरेक्ट्स नोजल। इसकी एप्लीकेशन जो है वो डीबरिंग, ट्रिमिंग और डी फ्लैशिंग, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, ये मोस्टली यहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आप देखें कि कोई आपने होल बनाया और होल की साइडों पे जो है वो बर्स आ गए, उनको ये चिप्स रह गई, ठीक है, और जो मुकम्मल तौर पे कट नहीं हुई, तो हैंड हेल्ड ऑपरेशन से जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो
उन बर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं, प्रॉपरली ट्रिम कर सकते हैं जो सरफेसेस, और जहाँ पर चिप्स हैं उनको डीफ्लैशिंग और क्लीनिंग और पॉलिशिंग का काम जो है वो इससे लिया जा सकता है। जो इसका वर्क मटेरियल है वो थिन फ्लैट स्टॉक ऑफ हार्ड ब्रिटल मटेरियल हो, ग्लास, सिलिकॉन, माइका और सिरामिक्स वगैरह की कटिंग के लिए मोस्टली जो है वो एब्रेसिव जेट मशीनिंग जो यूज़ की जाती है। तो यानी वाटर जेट ने या मैकेनिकल ने तीनों एरियाज़ को किसी हद तक कवर कर लिया कि हम जो है वो कपड़ा और लेदर और टाइल्स और इस किस्म के लिए ओनली वाटर जेट मशीनिंग यूज़ करेंगे। अगर हमें जो है वो मेटल्स वगैरह को कट करना है तो हम एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग यूज़ करेंगे। और ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो ग्लास या के लिए नहीं यूज़ हो सकती। तो अगर हमने ग्लास वगैरह की मशीनिंग करनी है तो फिर हम जो है वो एब्रेसिव जेट मशीनिंग यूज़ करेंगे सिलिकॉन या माइका वगैरह की कटिंग के लिए, ठीक है। और यही सिलिकॉन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में दिस मशीन फाइंड्स अ ग्रेट एप्लीकेशन, ठीक है, हो गया। एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बाद हम आ जाते हैं, ये जो 4 टाइप्स हैं वही मेनली हमने डिफ़ाइन की मैकेनिकल एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में, जिसमें मैकेनिकल एज एन एनर्जी यूज़ हो रहा है। फिर हम आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेसेस में। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें यूज़ की जाती है इन कम्बिनेशन विद केमिकल रिएक्शंस टू रिमूव मटेरियल। एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये कम्प्लीटली रिवर्स है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, जिसके अंदर चीज़ बिल्ट अप होती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इंस्टेड इसमें मटेरियल रिमूवल किया जा रहा होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मशीनिंग, ठीक है। तो वर्क मटेरियल मस्ट बी, इसकी जो लिमिटेशन है वो ओनली वन है कि वर्क मटेरियल जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। अगर वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, इट कांट बी मेड एज एन एनोड इन अ केमिकल रिएक्शन एंड दस नो प्रोसेस विल बी टेकन। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस की लिमिटेशन ये है कि जो वर्क मटेरियल है वो कंडक्टर हो, ठीक है। और इसके लिए जो प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल डीबरिंग है और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग का प्रोसेस है। ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो इसके लिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कौन क्या करा होगा, मशीनिंग वाला कटिंग का फिनोमेना करा होगा, डीबरिंग वाला जो है वो होल्स के साइडों में से जो एक्स्ट्रा चिप्स रह गए होंगे उनको रिमूव करा होगा, और ग्राइंडिंग जो है वो सरफेस फिनिश जो है वो ऑब्टेन करा होगा। तो अगर इनको इन डिटेल देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो प्रोसेस है विच इज़ यूज्ड इन मटेरियल रिमूवल बाय एनोडिक डिसोल्यूशन, एनोड की डिसॉल्व करके इसको जो है वो मशीनिंग का प्रोसेस करने को हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रोड यूज़ होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज किया जाएगा और उसको हम जो है वो टूल कहेंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड होगा उसको टूल कहेंगे, वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जो वर्क पीस है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाएगा। और ये जो है वो बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी वर्क पीस इसमें से एनोड में से रिमूव होगा वो इस फ्लोइंग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रिमूव हो जाएगा, और उसको हम अवॉइड करेंगे कि वो वर्क पीस के ऊपर जो है वो कंबाइन ना हो, सॉरी टूल के ऊपर या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर कंबाइन ना हो, ठीक है। ये इसकी पूरी ज्योमेट्री है, ये इलेक्ट्रोलाइट फ्लो हो रहा है, ये फॉर्म टूल या कैथोड्स हैं, जो शेप इन टूल्स की होगी वही शेप जो है वो वर्क पीस में जाके क्रिएट होगी। इसको इंसुलेट किया गया है, टूल होल्डर है ये लगा हुआ, यानी कैथोड्स को जो होल्ड कर रहा है, टूल फीड जो है वो इस तरह दे रहा है, नीचे जो है वो मूव कर रहा है और वही शेप क्रिएट करेगा जो कि इसकी है। ये वर्क पीस है और इसका जो है वो चार्ज पॉजिटिव है, और ये जो फॉर्म टूल्स हैं उनको नेगेटिवली चार्ज किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशन जो है, चार्ज जी जी, अपोजिट भी हो सकते हैं, चार्ज अपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे आपने कहा नहीं टूल को हम नेगेटिव का, नहीं नहीं, तो चार्ज उसका ऑपोजिट नहीं हो सकते। क्या होगा? अगर हम चार्ज ऑपोजिट करेंगे ना, अगर हम इसको पॉजिटिव कर देंगे और इसको नेगेटिव कर देंगे, तो आपको पता है कि नेगेटिवली जो चार्ज्ड होंगे वो फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही किया जाता है ना,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इस कैथोड को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और इसको जो है वो नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, और इसमें से जो नेगेटिव आयंस हैं फिर वो मूव करना शुरू कर देते हैं वर्क पीस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज को अपोजिट, अगर आप इसका चार्ज उल्टेंगे तो ही तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, यानी इसके ऊपर मास मास बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यस मैम। अगर आप वर्क पीस को नेगेटिव चार्ज कर देंगे और कैथोड को पॉजिटिव, सॉरी कैथोड तो नहीं होगा ना, उस पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, यानी आप इंस्टेड ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे कि वो नेगेटिव चार्ज हो और ये पॉजिटिव हो जाए, तो फिर इसमें पाइल अप होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो वो प्लेटिंग का प्रोसेस है। हमने क्योंकि इसमें से मटेरियल रिमूव करना है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज ऑन वर्क पीस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड। ठीक है, और फॉर्म टूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो मैम यूज किया जिसमें जाएगा। जो वर्क पीस है उसके ऊपर जो पॉजिटिव आई कांट हेयर यू। हेलो, हमारा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम वो म्यूट हो गया है। उसका नेट का कोई इशू ना हो। हेलो मैम। हाँ जी बताएं। हेलो, हमारा अब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशन में मटेरियल इज़ डीप्लेटेड फ्रॉम एनोड वर्क पीस, पॉजिटिव प्लेट में से जो है वो रिमूव होता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ कैथोड टूल, नेगेटिव पोल में वो जाके अटैच होना शुरू हो जाता है और इन एन इलेक्ट्रोलाइट बाथ। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली इसमें ऐड ही इसलिए किया जाता है दैट फ्लोज रैपिडली बिटवीन टू पोल्स टू कैरी ऑफ डीप्लेटेड मटेरियल, सो इट डज नॉट प्लेट ऑन टू टूल, के जो प्लेटिंग का प्रोसेस है वो ना हो और मटेरियल से कैथोड के ऊपर चिप जाके जो है वो पाइल अप ना हो मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है और वो इट मेक द removed material, you can say chip removed from the electrolyte। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो मटेरियल्स मोस्टली इसके लिए यूज़ किए जाते हैं वो कॉपर, ब्रास और स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए जाते हैं और टूल को एग्जैक्टली इन्वर्स शेप में बनाया जाता है पार्ट के। तो टूल साइज़ और शेप जो है वो मस्ट अलाउ फॉर द गैप, उस गैप को भी अलाउ करे जो कि वर्क पीस में है, तो एग्जैक्टली वही शेप जो है वो डेवलप की जा सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो है वो उसकी एप्लीकेशन डाई सिंकिंग में है। डाई सिंकिंग बेसिकली इरेगुलर शेप्स या कंटोर्स ऑफ फोर्जिंग डाइप्स, प्लास्टिक मोल्ड और अदर टूल्स में जो इरेगुलर शेप्स बनानी होती हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री होगी वो एग्जैक्टली वही रेप्लिका हम कैथोड उस शेप का बनाएंगे, लेकिन लिमिटेशन अगेन याद रखनी है कि सिर्फ वो मटेरियल इसके ऊपर मशीन हो सकता है जो कि इटसेल्फ कंडक्शन कर सकता हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती हो। फिर अगर मल्टीपल होल ड्रिलिंग करनी है तो मैनी होल्स कैन बी ड्रिल्ड साइमल्टेनियसली इंस्टेड दैट यू गो फॉर वन बाय वन। फिर होल्स दैट आर नॉट राउंड, तो रोटेटिंग ड्रिल तो इसमें यूज़ होनी नहीं है, तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में यूज़ हो सकते हैं और डीबरिंग का प्रोसेस भी हो सकता है। अलग से अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिबरिंग जो है वो यूज़ कैसे होती है, तो आप यहाँ पर प्रोसेस देख रहे हैं कि अगेन हम एक फॉर्म टूल यूज़ कर रहे हैं जिसकी कुछ इस किस्म की शेप है और ये होल है जो कि ऑलरेडी इसमें ये बर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पास करेंगे। ये वर्क पीस है और ये टूल है, टूल के ऊपर कैथोड या नेगेटिव चार्ज है, वर्क पीस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो adoption of electrochemical machining to remove burrs or sharp corners on holes in metal parts produced by conventional
थ्रू होल ड्रिलिंग में जो है वो बर्स क्रिएट हो गए थे, वो बर्स अब रिमूव किए जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बरिंग के प्रोसेस से। ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग का प्रोसेस भी इसी तरह अचीव किया जाता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इन विच ग्राइंडिंग व्हील। अब इसमें जो है वो एग्जैक्ट वैसा ही ग्राइंडिंग व्हील जो है वो यूज़ किया जा रहा है बॉन्ड मटेरियल के साथ, लेकिन जो बॉन्ड मटेरियल है वो कंडक्टिव होना चाहिए, तो फिर हम उसको नेगेटिवली चार्ज कर दे रहे हैं, और जो वर्क पीस है उसको पॉजिटिव या एनोडिक जो है वो चार्ज कर देते हैं, और एनोडिक डिसोल्यूशन जो है वो वर्क पीस की, अब ये इन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, दे आर इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट फ्लो। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील है बिल्कुल मैम वैसा ही है। जी जी। मैम इसमें मटेरियल रिमूवल प्रोसेस का कंट्रोल कैसे किया जाएगा मैम? इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा उसके मटेरियल के गिर्द पूरा है, तो फिर कहीं से भी वो रिमूवल हो सकता है चार्ज की वजह से। देखें, जब हम मोस्टली जब भी हम करते हैं ना इस किस्म का प्रोसेस, तो इसमें कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से किया जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी और पावर इस किस्म की देते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर एक क्वांटिटी में रखा गया है। आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रेट डिफाइन कर देते हैं, और दूसरा आपको बताएं कि ये फॉर्मिंग की तरह का प्रोसेस है। जो शेप वर्क पीस टूल की होगी यानी कैथोड की होगी, थोड़े जो है वो देर बाद आपका वर्क पीस उस कैथोड की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो तमाम अपने नेगेटिव चार्जेस के लिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो पिक कर लेगा। समझ रहे? तो ये यस बेसिकली मैम। है फॉर्मिंग का ही प्रोसेस। ये फॉर्मिंग का ही प्रोसेस है कि वो अपने तमाम नेगेटिव चार्जेस के लिए एग्जैक्टली उन्हीं दो लोकेशन से ही नेगेटिव चार्जेस पिक करेगा, बिकॉज इट इज़ बिहेविंग लाइक अ टूल बट दे आर नॉट इन डायरेक्ट कनेक्शन। अगर आप ग्राइंडिंग में देखें तो इसको इधर से ये डिस्टेंस दे दिया गया, अब इलेक्ट्रिसिटी ही इस क्वांटिटी में पास की जाएगी कि जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसमें से रिमूव हों और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके कंबाइन हो जाएं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसी तरह होता है ना। तो जस्ट अगर हमने कहा है कि ग्राइंडिंग हो, इसकी सरफेस क्लीन अप हो जाए, तो हम उतनी ही देर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और जो है वो ये जो है वो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है ग्राइंडिंग ही की तरह का। जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें जो बॉन्ड मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, यानी वो कंडक्टर है। ठीक है, और कंडक्टर होने की वजह से इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया गया, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया, इलेक्ट्रोलाइट रखा गया, और इस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग जो है वो ऑपरेट की गई। इसका फ़ायदा क्या है कि इसकी एक तो एप्लीकेशन ये है कि ये सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स की शार्पनिंग के काम आता है, बिकॉज सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर बेसिकली कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह जो है वो उनकी शार्पनिंग हो जाती है। अदरवाइज़ इसका जो वैसे ग्राइंडिंग का टूल है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसी तरह सर्जिकल नीडल्स हैं या थिन वॉल ट्यूब्स हैं या फ्रिजाइल पार्ट्स हैं, तो उसमें कोई डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन नहीं हो रहा और बिल्कुल एक लेयर रिमूव हो रही है, तो इसमें हार्डनेस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती वर्क पीस के। तो या तो बहुत हार्ड पीस हो तब भी वो इस तरह जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन हो जाएगा, और बहुत सॉफ्ट मटेरियल हो या फ्रिजाइल हो तो वो भी जो है वो उसकी भी ग्राइंडिंग हो जाएगी और सरफेस फिनिश हासिल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये 95% ऑफ मेटल रिमूवल जो है उसका मेटल रिमूव डीप्लेटिंग जो है वो पॉसिबल है। फिर जो थोड़ा बहुत पार्ट होता है तो उसको जो है वो बाद में मेंटेन कर लिया जाता है, और इसमें जो है वो मशीनिंग जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के थ्रू की जा रही है, तो ग्राइंडिंग व्हील भी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी फ्राइबिलिटी नहीं होगी, एब्रेसिव पार्टिकल्स को लूज़ नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए ग्राइंडिंग व्हील जो है वो मच लॉन्गर इनकी लाइफ हो जाती है। ठीक है, तो आज क्योंकि थेरी बहुत ज़्यादा थी तो लेट्स कीप इट यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें हम थर्मल को जो है वो देखेंगे कि थर्मल प्रोसेसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, लेज़र कौन सी है, और नेक्स्ट में हम ये जो हमने यहाँ पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग,
I can see that you have so many questions about that. तो जब हम करेंगे ना, हाँ जी अमार, आपने हैंड रेस किया हुआ है बट वी कांट हेयर यू. अब ऐसा करें, सीआर तो आप ही हैं, ऐसा करें जबल को मैसेज करें जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें. हेलो मैम. हाँ जी. मैम मैम मैंने पूछना था वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग वाला था वो लाइक स्लाइड करिएगा. हम्म, ये वाली ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग वाला जो हाँ ये जी, हाँ ड्राइंग जी, बनी है खुल गया. मैम, इसमें आपने कहा है कि क्या नाम है हम लोग इसके जो चार. फिर आपकी बात बंद होगी. बेसिकली कैथोड से हमें नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं और एनोड से हमें पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट कर रहा है ये कैथोड, और ये इसको जो है वो मूव करवा के, इसको जब मूव करवा लेते हैं तो इंस्टेड कि ये पॉजिटिव आयन जाके कैथोड के साथ अटैच हो जाए, ये मूविंग इलेक्ट्रोलाइट इनको बहा के ले जाता है और सेम टूल जो है वो वैसे ही रहता है. ये पॉजिटिव आयंस को कैथोड या टूल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है. ये बेसिकली वर्क कर रहा है फेराडेज लॉ में, और हम जो फेराडेज लॉ की इक्वेशन और कैसे ये चार्ज रिमूव हो रहा है, जैसे सदाब ने भी क्वेश्चन किया कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इसका एक न्यूमेरिकल भी रन करेंगे, ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इलेक्ट्रिकल आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा. ठीक है अमार, यू शुड टेल समवन एल्स अबाउट योर क्वेश्चन कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़रा मैम से पूछो, क्योंकि आपकी अपनी आवाज़ नहीं आ रही है. अच्छा जी, अटेंडेंस ले लेते हैं. सुना आप लोगों की छुट्टियां हो रही हैं 25 से. मैम मैम अल्लाह मैम करे हो आवाज आ जाए. रही है आपको? अब आ रही है. जी मैम मैं मैम सवाल हो रही पूछना है. चाह था कि मैं बताती हूँ, हमार पूछें आप. मैम ये जो नेगेटिव चार्ज मतलब कि हमने किया हुआ कटिंग टूल जो है उस पर हमने नेगेटिव चार्ज किया हुआ है जी और जी. जो वर्क पीस है उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है. तो हम्म. मैम जो हमने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ा हुआ था कि उसमें ये होता था कि जी जो पॉजिटिव चार्ज होता था ना वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पार्टिकल्स होते थे वो नेगेटिव चार्ज की जी तरफ जाते थे. जी. जी ठीक. तो इसमें क्या नाम है अगर हम लोग जैसे जैसे वो उसका जो टूल फीड है वो डाउनवर्ड उसको करे जाएंगे तो मैम हाँ. इसमें तो सारे जो पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर जब अटैच हो जाएंगे तो मजीद कटिंग इसकी कैसे पॉसिबल हो सकेगी? नहीं, यही काम तो इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है ना. वो उसको अटैच नहीं होने दे रहा नेगेटिव के साथ. वो फॉर्म टूल की वही शेप ले रहा है, और देखें ये इलेक्ट्रोलाइट फ्लो हो रहा है. जब पॉजिटिव पार्ट निकलता है ना इसमें से, तो इसको ये जी जी. फ्लो करके ले जाता है और इसके ऊपर अटैच नहीं होने देता. ठीक है, इसीलिए ये और फ्लोइंग इलेक्ट्रोलाइट. और दूसरा मैम ये कि क्या नाम है इसमें जो कटिंग सरफेस होगी वो तो काफी रफ बनेगी ना? नहीं, बिल्कुल फिनिश बनती हैं इतनी अच्छी. इवन आप जो नॉचेस हैं वो इसमें से बनाई जाती हैं. ठीक. एग्जैक्टली बिल्कुल वही सरफेस जो आपने इसकी दी है ना आपने, जी. वही जो टूल की सरफेस है एग्जैक्टली वही वर्क पीस की सरफेस होती है. इसलिए तो ग्राइंडिंग भी कर रहा है ये. इतना ज़बरदस्त प्रोसेस है, मैंने खुद होते हुए देखा है, अपने हाथ से किया हुआ भी है. अब मुझे थोड़ा सा भूल गया है क्योंकि 8 एक साल हो गए. और मैम हाँ. मैम इसमें ये जो ग्राइंडिंग जो वाला था ना इसका थोड़ा सा जी बताइए कि जी. इसके ग्राइंडिंग का प्रोसेस कैसे कर रहा है इसमें? ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम वही व्हील यूज़ हो रहा है. और व्हील में जस्ट डिफरेंस ये है कि जो इसका बॉन्ड मटेरियल है ना वो कंडक्टिव है. एब्रेसिव तो है ही ना बीच में, जी और जी. बॉन्ड मटेरियल इसका जो है वो कंडक्टिव है, और इसमें इसको नेगेटिवली चार्ज हो सकता है. तो क्योंकि व्हील जो है वो इस तरीके से फ्लैट सरफेस है, तो एग्जैक्टली वही फ्लैट सरफेस जो है वो वर्क पीस की भी बन रही है. ठीक. ठीक मैम है. मैम ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग और जैसे स्मॉल बिल्कुल वो कट लगाने के लिए इधर हमने देखी थी हाँ. तो उधर वो यूज करते थे जैसे ब्लेड्स की ग्राइंडिंग होती है गैस टरबाइन की,
तो उनके लिए गैस, मतलब हाँ। वो अक्सर करते थे यूज, ये देखो, सीएनसी यूज कर रहे होते सबसे थे, बड़ा और इसको फिर प्रॉब्लम हम जो इलेक्ट्रिक। इसका है, नहीं, जो ब्लेड्स, टरबाइन ब्लेड्स की बात कर रहे हो, तो टरबाइन ब्लेड्स का तो वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि इतनी बड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हमें नहीं मिल सकती, इतनी बड़ी जो कि इलेक्ट्रोलाइट में वो हुई हुई हो, मतलब जिसे क्या कहते हैं, क्या वर्ड है इसके लिए, भीगी हुई हो, दबी हुई हो इमर्स। उसके अंदर, हाँ, इमर्स्ड हो, तो वो जो है वो ब्लेड्स नहीं हो सकती इसके, वो शॉर्ट पार्ट, जैसा मैंने आपने बताया ना कि बहुत हार्ड मटेरियल है और उनमें नोजल बनानी है या टूल्स हैं, उनके लिए यूज जी हो सकती है आई गेस। ये बड़े बहुत बड़ी बड़ी टरबाइंस के लिए नहीं यूज हो सकती, इन केस अगर कहीं डेवलप हुई भी है तो आई मस्ट रिसर्च मोर। लेकिन जहाँ तक मैंने वो मशीन देखी है वो ऑलरेडी काफ़ी ह्यूज स्पेस ले रही थी, लेकिन उसका जो विड्थ ऑफ मटेरियल मैक्सिमम जो था ना, जो हमारी यूईटी में पड़ी हुई थी, वो मैं अगर बताऊं 3 फीट था, ठीक है, 3 फीट से ज़्यादा नहीं था। यस, एक समझे टब सा होता है ना जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जी यस मैम। तो इस वजह से वो वहाँ नहीं यूज हो सकती। और मैम फिर ठीक। उस जो मतलब ब्लेड्स की ग्राइंडिंग के लिए फिर उसको हम किस टाइप में लेंगे, ये मैं पूछ रहा किस हूँ। ब्लेड्स की ग्राइंडिंग के जैसे लिए? तो मतलब वो गैस टरबाइन के जो ब्लेड्स रोटर वो बनाते थे ना, या हम्म कट लगाने के लिए, मतलब के लिए वो हम्म। थौ में कट लगाते थे, तो मतलब वो इंच का भी 1000 पार्ट मतलब उसमें, तो उसके लिए फिर अच्छा, वो सीएनसी यूज कर रहे होते, तो मैं उसका वो पूछना चाहता हूँ, वो फिर हम तो उसको उसके किस लिए हो टाइप में सकता है लेंगे। कि वो एब्रेसिव वाटर जेट या लेजर थर्मल कोई प्रोसेस यूज करें। हाँ जी, हाँ। आगे हम लेकिन मैम पढ़ेंगे ना। उसमें कूलेंट भी यूज हो रहा होता था ना, मतलब अक्सर साथ में कूलेंट, कूलेंट भी वो कूलेंट एक रखते अलग हैं। चीज है, इलेक्ट्रोलाइट एक अलग चीज है। इलेक्ट्रोलाइट में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना, कूलेंट तो बेसिकली वही हाई टेम्परेचर्स जो क्रिएट हो इसमें रहे होते हीटिंग हैं। प्रोसेस तो हो भी नहीं रहा। इसमें तो कोई हीटिंग नहीं हाँ है जी, ना, तो इस हम्म, वजह से अच्छा, इसमें ये कूलेंट के तौर पे नहीं वर्क करेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, क्योंकि इसने फ्लो करके लेके जाना है जो मटेरियल रिमूव हो रहा है उसको, ताकि वो ठीक डिपॉजिट ना हो ठीक है मैम। कैथोड के ऊपर, वरना तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हो जाएगा और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी कैलकुलेशन पढ़ते हैं, फिर ज़रा और सवाल होंगे तो फिर उनको और डिस्कस करेंगे। ठीक है।